SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope that you all are very well at your home. Dear students, today we are going to start chapter 5, that is work around us. So let's start with me. Dear students, in this chapter you people will learn that why people work. Next, different kinds of work, and the last topic is concept of child labor. Okay? So let's start with this. Why do people work? अच्छा, आप मुझे बताइए, कोई भी इंसान है काम क्यों करता है? क्या रीज़न होता है काम करने का? मेनली क्या रीज़न होता है? टू फुलफिल द बेसिक नीड लाइक फूड, shelter and clothes. Okay, so to pay for the daily needs of the family we need some money, and the work people do to earn money is called the occupation. कोई भी इंसान जब कोई काम करता है मनी के लिए, मनी यानी कि पैसा कमाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी काम को हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द काइंड्स ऑफ वर्क. As you all know that there are different kinds of work. There are some people who are engineers, some are doctors, some are teachers. So, some people like teachers, principals and professors teach students in the school, colleges. Writers can work from home. They write different types of books. Writers क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की बुक्स लिखते हैं. मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं. कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, और सबका अल्टीमेट रीजन क्या होता है? टू अर्न द मनी. ओके, लाइक soldiers of the army, sailors of the navy and the pilots of the air force work hard to keep our country safe. Dear students, just by the soldiers we are safe at our home. Okay, look at these all. He is a banker, he is an engineer, he is professor, he is a writer, and look at this picture. He is a soldier, he is sailor, he is pilot, and she is astronaut. So there are varieties of occupations. Okay, astronomers क्या काम करते हैं? Astronomers are the people who study the universe. मतलब जो हमारे पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, like planets, stars, galaxies. Okay, and there are some people who called astronauts. अब astronauts क्या काम करते हैं? Astronaut travel करते हैं space में. Yes, they travel in space through the spacecrafts. Okay, there are some singers also, some actors also, and some dancers also who work for TV channels, films or perform on the stage. Means अब आपको समझ आ गया होगा कि सबकी अलग अलग ऑक्यूपेशन है और सबका अल्टीमेट रीजन क्या होता है? टू अर्न द मनी. नाउ एवरीवन वर्क्स इन अ होम. जैसा कि आप सबको ही पता है, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी काम करते हैं. अच्छा बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी कि जो सिंगल फैमिली है, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी कि जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ काम घर में ज़रूर करते होंगे. ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अर्निंग के लिए ही काम करते हों, घर में हेल्प करके भी वो काम करते हैं. देखते हैं कैसे. So, in a family, different members work together to make their home a happy and comfortable place to live in. In some families, only one parent goes out to work to earn money, while the other parent look after the household work. जैसा कि आपको पता है, सभी के पेरेंट्स देखो, सभी के दोनों पेरेंट्स तो वर्क नहीं करते हैं. किसी के एक पेरेंट वर्क करता है तो कोई घर में काम करता है. Our parents share household work such as buying the things we need and cooking. हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारी हर नीड का ध्यान रखते हैं. हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी हमारी नीड फुलफिल करते हैं.
The grandparents usually stay at home and help the parents in looking after the children. जैसे कि आप में से कुछ बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आपको ट्यूशन लेके जाते होंगे या स्कूल भी लेकर जाते होंगे, वहाँ से लेकर भी आते होंगे, तो कुछ इस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं. और कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स आपका होमवर्क कराने में भी आपकी हेल्प करते होंगे, है ना. So they can also help the children with their studies. Yes, this is very helpful when both parents are working. जब हमारे दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होते हैं? यस, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी अपनी फैमिलीज में अपनी पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. कैसे? Children should also help their parents at home. They can do small tasks such as watering the plants, dusting the furniture, laying the table, making their bed, keeping their clothes neatly in the cupboard and arranging their school bags. तो ये सारे काम आप खुद से कर सकते हो, जिससे आपके पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता है और उनको भी पता चल जाता है कि अब बच्चे समझदार हैं, वो खुद से काम कर सकते हैं. Now, sometimes even children have to work. ये तो था कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिलीज में. अब ये है कभी कभी बच्चों को काम करना पड़ता है just to earn money. अब ऐसा क्यों होता है? चलो पढ़ते हैं. There are some families who are poor and do not have enough money to make a living. कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उसमें बच्चों को काम करना पड़ता है, बच्चों को पेरेंट्स की हेल्प करनी पड़ती है. इवन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी उनको हेल्प करनी पड़ती है. इन सच फैमिलीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क टू अर्न मनी. दे वर्क एज डोमेस्टिक हेल्प. आपने अपने नियर बाय देखा होगा छोटे बच्चों को एज अ डोमेस्टिक हेल्पर एट टी स्टॉल्स, construction sites, on the streets. So this is known as the child labor. जो बच्चे ऐसे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम? चाइल्ड लेबर बोलते हैं. और चाइल्ड लेबरिंग बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि ये कंट्री की बैड साइड शो करती है हमें कि इस कंट्री का कितने ज़्यादा बुरा हाल है. देखते हैं कैसे. इधर देखिए, छोटा सा बच्चा यहाँ पर टी शॉप पे वर्क कर रहा है, टी सर्व कर रहा है, और इसमें देखिए ये शू पॉलिश कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा छोटा है. तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है? इससे इनकी स्टडी पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इनकी स्टडी से खराब होती है, पढ़ ही नहीं पाते हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम लॉन्ग आवर्स एंड अनहेल्दी प्लेसेस. कभी कभी इनको बहुत बुरी कंडीशंस में भी काम करना पड़ता है, लाइक किसी फैक्ट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पे पूरा ही गंदा होता है, इनकी पूरी अनहाइजीनिक कंडीशन है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब होती है. सो चाइल्ड लेबर हार्म देयर बॉडीज एंड माइंड्स एज वेल. Most of them are not treated well by their employers and are often given less money for the work they do. कभी कभी इन बच्चों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है और सबसे कम पैसे इनको दिए जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है अगर बहुत छोटा बच्चा काम कर रहा है मीन्स उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए लोग उनको बहुत ही कम पैसे देते हैं और कभी कभी इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है. So the last topic we have here, preventing child labor. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया चाइल्ड लेबरिंग बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे. अगर यही चाइल्ड लेबरिंग में फंस गए तो स्टडी कौन करेगा? आइए पढ़ते हैं इसे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड मैनी लॉज टू प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर. है ना. इन इंडिया एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज. स्टूडेंट्स, क्लास 8 तक की एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है. ये फ्री तो है, साथ ही ये कंपल्सरी है. क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ना ही है. द सर्व शिक्षा अभियान SSA is a program run by the government to help provide free education to children between 6 and
14 years of age. जो सर्व शिक्षा अभियान है वो चलाया गया है किसके लिए? जो बच्चे 6 से लेकर 14 ईयर्स की एज के बीच के हैं उनके लिए, ताकि वो पढ़ सकें, उनको और ज़्यादा एनकरेज किया जाए कि आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है. It also provides bags, uniform, books and midday meal free of course to these children. अब इन बच्चों को स्कूल से बैग भी फ्री मिलता है, बुक्स भी मिलती है, और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, मिड डे मील मिलता है. तो इससे क्या है, बच्चे स्कूल आने के लिए और ज़्यादा उनको रहता है कि हाँ हमें स्कूल जाना है, बच्चे एनकरेज होते हैं. So there are many organizations like the United Nations International Children's Emergency Fund, which is also known as UNICEF, and Child Rights in You, CRY, and the last one, International Labour Organization, ILO, that work against the child labor towards the betterment of the children. बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करते हैं और ये देखते हैं कहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पर लोग चाइल्ड लेबरिंग कर रहे हैं, बच्चे चाइल्ड लेबरिंग कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. टू पे फॉर द डेली नीड्स ऑफ द फैमिली वी नीड सम मनी. The work people do to earn money is called the occupation. In some families, only one parent goes out to the work to earn money, and while the other parent look after the household work, as your mothers do. In some families, children are forced to work to earn money, and this is known as the child labor. The government of India has made many laws to prohibit child labor. बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो चाइल्ड लेबरिंग के अगेंस्ट वर्क करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द एक्सरसाइज इज गिवन हियर विच इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर विच वी हैव लर्नड राइट नाउ. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर क्लास इज एंडिंग हियर. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. बाय बाय.